चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। When you look around, you see both living and non-living organisms. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is that an inanimate thing does not have which a living thing has? The answer to this is the presence of the basic unit of life, the cell, in all living organisms. All organisms are composed of cells. Some are composed of a single cell and are called unicellular organism, while others like us composed of many cells are called multicellular organism. This we have already seen in our previous video. Then next we are moving towards 8.1. What is a cell? Unicellular organisms are capable of, firstly, independent existence, and secondly, performing the essential functions of life. मतलब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर independent living. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. Anton van Leeuwenhoek first saw and described a live cell. Robert Brown later discovered the nucleus. The invention of the microscope and its improvement, leading to the electron microscope, revealed all the structural details of the cell. ये पैरा बहुत इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे आपके लिविंग सेल किसने डिस्क्राइब किया और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर्ड किया, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी किसने रिवील किया वो भी आप यहाँ देख सकते हो. Next, 8.2 Cell theory. In 1838, Matthias Schieden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant. All about the same time, Theodore Schwann, 1839, a British zoologist, studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे रिपोर्ट हुआ ये यहाँ पे हम देख सकते हैं. He also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of a cell wall is the unique character of the plant cells. On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. किसने प्रपोज किया? श्वन ने. द हाइपोथेसिस, उसके हाइपोथेसिस में ये कंक्लूड किया कि हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स की बॉडी और प्लांट्स की बॉडी किससे कंपोज होते हैं? सेल से कंपोज होते हैं एंड देयर प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. शिल्डन एंड श्वन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी. शिल्डन एंड श्वन ने साथ मिलकर फॉर्म किए. दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल्स वेर फॉर्म्ड. न्यू सेल्स कैसे फॉर्म हुए ये थ्योरी तो प्रूव नहीं किया, लेकिन रुडोल्फ विर्चोव in 1855 first explained that cells divide and new cells are formed from pre-existing cells. Omnis cellula e cellula.
ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो हमारे पास ऑलरेडी सेल्स होते हैं वो डिवाइड होके न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं। ये किसने हमें बताया? ये हमें बताया कि रुडोल्फ वर्च्यू ने इन 1855। He modified the hypothesis of Schilden and Schwann to give the cell theory a final shape. Schwann and Schilden ने आपके सेल थ्योरी फार्मूला किए थे, लेकिन उसमें वो ये नहीं बताया था कि सेल कैसे फॉर्म करते हैं, लेकिन रुडोल्फ विर्च्यू ने सेल कैसे फॉर्म करते हैं ये उन्होंने बताया और शिल्डन और शवन के सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे, अब हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं सेल थ्योरी को, ये हमें 2 रूल्स में यहाँ पे बताया गया है। उसमें फर्स्ट वन है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। सेकेंड वन, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल सेल्स आर अराइज्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब सेल्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल के प्रोडक्ट ही होते हैं और सेल्स किससे अराइज होते हैं? जो एक्चुअली में होते हैं प्री एग्जिस्टिंग, मतलब पहले से ही होते हैं, उससे ही डिवाइड होके हमारा सेल बनते हैं। नेक्स्ट 8.3 एन ओवरव्यू ऑफ सेल। You have earlier observed cells in an onion peel and or human cheek cells under the microscope. Let us recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary, and just within it is the cell membrane. The cells of the human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. This nucleus contains the chromosomes, which in turn contain the genetic material DNA. Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas the cells that lack a membrane bound nucleus are प्रोकैरियोटिक। यहाँ पे आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। सिमिलैरिटी क्या है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है। ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। The cell plasma is the main arena of cellular activities in both the plant and animal cells. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state. यहाँ पे आपको chemical reactions देखने को मिलते हैं। Beside the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane bound distinct structure called organelles like the endoplasmic reticulum, the Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies and vacuoles. The prokaryotic cells lack such membrane bound organelles. ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है ये आपको सिर्फ यूकैरियोटिक में देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। Ribosomes are not membrane-bound organelles found in all cells, both eukaryotic as well as the prokaryotic. Ribosome आपको दोनों में भी देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। ये membrane bound structure नहीं है। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the 2 organelles, chloroplast in the plants and mitochondria, and on rough ER. Animal cells contain another non-membrane bound organelle called centrosome, which helps in cell division. आपके सेल डिवीजन में क्या एक्ट करता है? एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोजोम।
सेंट्रोसोम हेल्प करता है आपके सेल डिवीजन में। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। आप यहाँ पे फिगर 8.1 में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोप्लाज्मास, द स्मॉलेस्ट सेल्स, mycoplasma are the smallest cells, are only 0.3 micrometer in length, while bacteria could be 3 to 5 micrometer. The largest isolated single cell in the egg of an ostrich. The largest isolated single cell is the egg of an ostrich among multicellular organisms. यहाँ पे आप द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच अंडरलाइन कर सकते हो। among मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में देखें तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। हमारे जो ब्लड सेल होते हैं वो 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। लॉन्गेस्ट सेल कौन है? नर्व सेल्स। कौन से हैं? नर्व सेल्स आर द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप्स। सेल्स भी हमारे शेप में ग्रेटली वेरी करते हैं। दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। कौन से शेप में है? डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विथ द फंक्शनल दे परफॉर्म। उनके शेप किसके बेसिस पे वेरी करता है? जो वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस पे उनके शेप वेरी करता है। ये प्यारा बहुत इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे इसे स्टार मार्क बना के यहाँ से आप स्टार मार्क बना के रख सकते हो या हाईलाइट कर सकते हो। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विथ द फंक्शन दे परफॉर्म। फिगर 8.1 यहाँ पे आप देखो, डायग्राम शोइंग डिफरेंट शेप ऑफ द सेल। फर्स्ट वन इज रेड ब्लड सेल्स, राउंड एंड बाइकॉन्केव। यहाँ पे आप देख सकते हो रेड ब्लड सेल्स, राउंड एंड बाइकॉन्केव। वाइट ब्लड सेल्स आर एमीबॉइड। White blood cells are amoeboid in shape. Columnar epithelial cells, long and narrow. Nerve cells, branched and long. Nerve cells are branched होते हैं और long होते हैं, इन्हें हम long cells भी कहते हैं। A trachid, elongated. Trachid हमारा नहीं, प्लांट का elongated होता है। A trachid, elongated. मीसोफिल सेल, राउंड एंड ओवल। मीसोफिल सेल जो होते हैं वो राउंड एंड ओवल शेप में होता है। तो हम आज के टॉपिक यहाँ तक रखते हैं, आप यहाँ तक पढ़ सकते हैं। तो आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोल सकते हो ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूँ। ओके, थैंक यू।